making the entire cross section of the such a long journey from my graduation days or in Kirodimal College to शिवाजी कॉलेज फॉर सच ए लॉन्ग टाइम पीरियड। मेरे पैरों के तले से जमीन निकल गई। ऐसा चैलेंज मेरे सामने, मैंने कहा मैंने क्या गलती कर दी। मतलब इतने सबसे रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स को वहाँ घूमने के लिए कि मैं देख रहा हूँ आप घूमो और क्या 10 बजे तक ना आए, तो वो मेरे लिए एक ऐसा दिन था जिसको मैं हर मोमेंट पे याद करता हूँ। कैसे इम्पैक्ट्स और आपके एजुकेटर फ्रंट पे इंक्लूसिविटी क्या मैटर करती है? कॉमन फ्रेज यूज करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और उसी को सब्सटेंशिएट करने के लिए इंक्लूसिविटी एक टर्मिनोलॉजी आई कि Hello everyone and welcome to the official podcast of Center for Promotion of Inclusivity Society of Shivaji College, and today we have our very special guest with us, which is our Vice Principal Sir, Professor Tejveer Singh Rana Sir. Welcome sir. Thank you. And today he will be enlightening us and guiding us on how inclusivity is important in our campus and how it means a lot in our society also. So my first question would be, sir, on a personal thing, that what was the what was the journey you have from your college days to the vice principal of Shivaji College till now? Oh, that's interesting. Making the entire cross section of the such a long journey from my graduation days or in Kirodimal College to Shivaji College for such a long time period. It is very difficult to narrate in few words, but it was quite interesting. I have seen the phases of traditional teaching learning process to nowadays you can say hybrid mode of teaching learning process. Several new aspects are included in the academic curriculum. Academic curriculum is designed as per the requirement of the students. Earlier it was the conventional curriculum, and teachers are equipped with time to time faculty development programs. The orientation of the students towards every discipline is highly professional. So in such manner I can say it is the wonderful journey observing the sea change from rudimentary traditional teaching, or I would say आज तो वो teaching जो हमने की थी it looks like outdated, to the modern and market oriented teaching learning process. And while coming to the Shivaji College, I joined in 1990, and since then I happened to involve in all the activities of Shivaji College, maybe apart from classroom and departmental activities, curricular activities, co-curricular activities, extracurricular activities, even the outreach activities, long excursions, study tours. Apart from that, almost academic and cultural committees of the staff council, I performed my duty, and I became able to interact variety of students and faculty members in the entire course of my teaching learning process. And I happen to be, I'm very satisfied about the journey I started from and reached to the place. Your journey is as great as your personality, sir. Then moving forward, like आप सब जानना चाहेंगे कि इंक्लूसिविटी जो है उसने आपकी जर्नी में कैसे रोल, उसका क्या रोल था, कैसे इम्पैक्ट्स, और आपके एजुकेटर फ्रंट पे इंक्लूसिविटी क्या मैटर करती है? देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं, इंक्लूसिविटी जब हम कई बार एक कॉमन फ्रेज यूज करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और उसी को सब्सटेंशिएट करने के लिए इंक्लूसिविटी एक टर्मिनोलॉजी आई है कि सबको शामिल करो और सब में शामिल करो। कोई भी समाज सबको साथ लिए बिना तरक्की नहीं कर सकता। एंड इंडिया इज बेस्टोड विद सोशल हेट्रोजेनिटी, ज्योग्राफिकल हेट्रोजेनिटी, एंड आई वुड से कल्चरल हेट्रोजेनिटी। इतनी सारी हेट्रोजेनिटी का कंट्री रहा है, इतनी सारी
विभिन्नताएं, बट स्टिल वी ऑल आर इंडियन। अब हम सब यूनिटी ऑल आर इंडियन क्यों है? क्योंकि कुछ उसमें कॉमन चीजें हैं जो सबको जोड़ के रखती हैं। लाइक अब मैं कहूं नेचुरल रिसोर्सेज आर फॉर ऑल। जब भारतीय रेल जब नॉर्थ ईस्ट के लमडिंग स्टेशन पर जाती है, उस पे हिंदी में लिखा होता है भारतीय रेल, और जब गुजरात के सोमनाथ रेलवे स्टेशन पे जाती है या इसमें गुजरात के रिमोट कच्छ रीजन में जाती है, तो उस पे भी भारतीय रेल। तो ये वो भारतीय रेल सबकी समग्रता का प्रतीक है और सबको जोड़ती है, और उसके बिना किसी का जीवन संभव नहीं है भारत में। सो सबको साथ मिला के चलने वाली चीजें, वो हमारी एक एसेंशियल इनएविटेबल चीजें, वो हम सबको अनेकता में एकता बनाती है, और इसलिए इंक्लूसिविटी की जरूरत है। मैं एक रूरल एग्रेरियन सोसाइटी से आया हूँ। I born and brought up in a flood prone village where every year flood used to come and always face the natural disaster. उस फ्लड के उस डिजास्टर का जो सबसे खराब रूप होता है, लाइव स्टॉक के साथ हमें गांव से हर साल पानी में तैर के बाहर निकलना पड़ता था, और जहां जाते थे शेल्टर भी नहीं मिलता था, और जहां पशुओं को चराते थे ग्रासलैंड से सब लोग भगा देते थे। तो एक ऐसे हेट्रोजेनस कंडीशन में एग्रेरियन सोसाइटी में लाइव स्टॉक के साथ जी के, फिर वेजिटेबल ग्रोइंग सोसाइटी से निकल के छोटी छोटी प्रोडक्ट को एग्रीकल्चरल मार्केट में बेच के, कहीं वेजिटेबल मार्केट में, कभी ग्रेन मार्केट में, कभी फ्लावर मार्केट में, क्योंकि सब मार्केट अलग अलग है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग सो मेनी थिंग्स कि हम इतने तरह के लोगों से बात करते हैं। सो ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट which can interpret all the narratives of the different type of people. Then I evolved interest in geography and basically इस सारी जर्नी में मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी जर्नी में मुझे कहीं एक्सक्लूड किया गया। जहाँ टैलेंट होता है वो टैलेंट अपनी जगह रास्ता बना लेता है। उसमें बेसिकली एक संघर्ष, मैं इसको नहीं कहूँगा, एक लगे रहना काम में, अपने काम पे फोकस रहना, डिसिप्लिन रहना, और अपने ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज फिक्स करके रखने से मुझे लगा कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम ए रूरल बैकग्राउंड, फ्रॉम ए नेचुरल डिजास्टर प्रोन विलेज, I get assimilated, I get amalgamated, I get adjusted in the ultra urban environment with no difficulty at all. So inclusivity is required, though देखिए inclusivity को सही सबसे अच्छे से वो समझ सकता है जिसने एक्सक्लूजन टॉलरेट किया है, जिसने एक्सक्लूजन को जिया है। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि भारत सरकार एक रिजर्वेशन पॉलिसी देती है। एक रिजर्वेशन पॉलिसी बेसिकली लाइक सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट, कल्चरली 2 जनरेशन पीछे चले जाएं तो अनटचेबिलिटी वाज ए कॉमन फिनोमेना। और जो अनटचेबल थे ना, उनको एक्सक्लूड कर देते थे किसी भी डेवलपमेंट की प्रोसेस से, किसी भी प्रिविलेज की प्रोसेस से, एजुकेशन से। सो दैट वाज द लाइक उसका दुख दर्द सिर्फ वही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और जब से ये चीजें हटी हैं, ये जनरेशन को ये बताएं कि इतना पेन में सोसाइटी पैदा होती थी, और एक होता ना स्टोइक मतलब उस दुख के साथ जीना, बिना कंप्लेंट के जीना, कंप्लेंट भी नहीं करना, और उस दुख के साथ जीना। सो नाउ दिस सोसाइटी हैज कम आउट ऑफ इट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड सो मेनी राइट्स टू द पीपल। एक ही बेसिकली हमें पहला राइट टू इक्वलिटी जो दिया ना, सबको बराबर समानता, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी।
but there are certain limitations inclusivity में. Remoteness is one of the limitation. दूर दराज जहाँ डेवलपमेंट नहीं पहुँचा, जहाँ सड़कें नहीं पहुँची, जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उसने उनको दूर रख दिया. और लेकिन अब आज के युग में, सोशल मीडिया के युग में, इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फ्लैश होती है. सो द स्पीड ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी फास्ट. इसने भी इंक्लूसिविटी को बेटर किया है, सबको जानकारी दी है और सबको पहचान दी है. इस कॉलेज में जहाँ तक, चूंकि मैं सभी पोजीशंस में काम कर चुका हूँ, स्टाफ काउंसिल की कमेटीज में बरसर रह चुका हूँ, नैक कोऑर्डिनेटर में रहा हूँ, मैंने इस कॉलेज में एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट रहा हूँ, पूरा फाइनेंस की सुपरवाइजरी कमेटी, एकेडमिक सुपरवाइजरी कमेटी, एकेडमिक सभी कमेटीज़ का मैं कन्वीनर भी रहा हूँ, डिसिप्लिन कमेटी का, या जितने भी 10, 15, 20 साल से कॉलेज में इलेक्शन हो रहे हैं, आई एम द वन who is conducting the elections in the college. So I happen to involve all the students at par. हम स्टूडेंट्स के लिए हम टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स वी ट्रीट देम एट पार, पैरिटी पे रखते हैं. और हमें कभी भी ऐसा कोई वो नहीं मिलता कि हम किसी को किसी रीजन के बेस पे, किसी लैंग्वेज के बेस पे, किसी रिलीजन के बेस पे, किसी कल्चरल कंडीशंस के बेस पे कोई एक्सक्लूड करते हो, ऐसा नहीं है. सो दिस जर्नी हैपेंड टू बी अ मार्वेलस जर्नी. That was really brilliant, sir, like knowing about your journey. And you talked about flood prone area from you came, like there's situations right now in Punjab and Bihar also, like their remote areas are fully flooded with flood waters, and now in Punjab there's all it's all messed up right now. So what will be your comment over that? देखिए, नेचुरल डिजास्टर एक नेचुरल फिनोमेना है, वो उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. वी मे मिटिगेट देम. हमारे पास आज के दिन कितना वाटर चैनल में डिस्चार्ज है और उसको हम कब कितना रिलीज करेंगे, और इस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, हाउ मच क्यूजेक, हम उसको डिटरमाइन कर लेते हैं. ये जो अब पंजाब में फ्लड आया है ना, ये बेसिकली हमारा मैकेनिज्म का फेल्योर है कि हमारा वार्निंग सिस्टम कमजोर है, हमारा वो डेटाबेस सिस्टम कमजोर है जो डिसेमिनेट नहीं कर पाया कि कैचमेंट एरिया में कितनी बारिश हो रही है, कितना क्लाउड बर्स्ट हुआ है, वो डेटा. अब ये सारा पानी, वाटर शेड का पानी एक चैनल में आएगा, देन हाउ मच विल बी द वाटर, इस रिजर्वोयर की कितनी कैपेसिटी है. ये डिजास्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड स्टोरेज से या डिस्प्लेस करके. हमने कभी फ्यूचर, हम ये सोचते हैं, हमारी मेमोरी बहुत कम है नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं. सेटलमेंट को इतना नज़दीक कर देते हैं, रिवर चैनल के फ्लड प्रोन एरिया, खादर रीजन में सेटलमेंट करके हम अपने आप को वल्नरेबल बना देते हैं. लेकिन ये जो लॉस हुआ है, इसके प्रति मेरी बहुत संवेदना है. ये जो फार्मर्स का लाइफ स्टॉक का हंड्रेड्स ऑफ द मुर्रा ब्रीड, बेस्ट क्वालिटी ऑफ बफेलोज, लाइक दे डाइड tied with the chain on the at one particular point, और जो खुल गई वो बह के रावी से पाकिस्तान में चली गई. Hundreds of the carcass of the dead bodies of the livestock, they reached over there. All the crops are destroyed. Siltation get accumulated in the houses, in the fields and everywhere. So because Himalayan river brings lot of silt along with, yes, so with the flood, so the siltation is problem, water logging is the problem. After the flood, series of problems, health issues are the problem, shortage of the food supply, shortage of fodder supply, shortage of the drinking water to the people. So all electric lines and the roads are destroyed by the flood. इसके प्रति संवेदना है, इसको चेक किया जा सकता था, इसको मिटिगेट किया जा सकता था, इसको कम किया जा सकता था.
सिर्फ हमारा जो हिमालयन रीजन में जो रेनफॉल होता है, अगर हमारा उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग और डेटाबेस होता तो हम उसके लोअर एरिया में रिवर बेसिन के लोगों को हम वी कुड सेंसिटाइज के इससे अब दूर रहना चाहिए, वी शुड शिफ्ट फ्रॉम हियर। सो दिस इज द वन। बट मेरी संवेदना है कि रावी कैचमेंट में, पूरे फिरोजपुर में, पूरे इवन माजा रीजन में ये जो फ्लड आया है रावी के किनारे और बियास के किनारे, सो इट वाज टेरिफिक, इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, इसको अवॉइड किया जा सकता था। आज हम अल्ट्रा मॉडर्न फेज में भी अगर इसको अवॉइड नहीं कर सकते तो क्या कब कर सकते हैं? अब तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, जीआईएस डाटा है, और हर रोज लैंड सॉरी द सैटेलाइट इनसेट का लेटेस्ट डाटा है, कहाँ कितनी बारिश हो सकती है, कितना पानी है, हर समय का 24 आवर वी आर अंडर सर्वेलेंस। दैट सर्वेलेंस कुड हैव बीन यूज्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द, बट फ्लड में रहने वाले लोगों की जो जीवन है ना, वो उनका जो सब कुछ कई साल वो इकोनॉमिकली पीछे चले जाते हैं, एजुकेशन छूट जाती है, स्कूल बिल्डिंग समाप्त हो जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती, फूड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, लोगों का आउट माइग्रेशन बढ़ता है। और सबसे बड़ा दुख ऐसे में जो पुअर लोग हैं, इकोनॉमिकली पुअर या लैंडलेस कम्युनिटीज के लोग हैं या सर्विस कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे आर्टिजन्स हैं, बढ़ई है, लुहार है, कुम्हार है, नाई है, धोबी है, तेली है, जो गांव में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, ये जब टेक्नोलॉजी के साथ इनकी जरूरत नहीं होती, इनका रूरल से अर्बन माइग्रेशन बढ़ जाता है, और सच टाइप ऑफ फ्लड विल इंक्रीज द रूरल डिस्ट्रेस और रूरल लाइक आउट माइग्रेशन, और ये रूरल से अर्बन की तरफ आउट माइग्रेशन को ये बढ़ाएगा फ्यूचर में। और उसके सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होता है, गरीब लोग, और उसमें भी सबसे ज्यादा कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो महिलाओं पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज दे आर द लीस्ट मोबाइल। सो दिस इज ऑल अबाउट द पंजाब। Yes. Our nation stands together with them with our unity and inclusivity. मूविंग फॉरवर्ड सर, आपने एक चीज़ और बात करी हमारे कॉलेज कैंपस की इंक्लूसिविटी के साथ, तो प्लीज़ सबको बताइए कि हमारे कॉलेज ने क्या क्या स्टेप्स अब तक लिए हैं इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए। देखिए, शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोमिनेंट कॉलेज है। नैक में दूसरा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नैक में ए ग्रेड सबसे पहले मिला था, जिसको सबसे पहले जीसस एंड मैरी को ए ग्रेड मिला था 2015 में मार्च में, और अगस्त में हमें शिवाजी कॉलेज को मिला था, जो कि मैं उसका कन्वीनर था। हम NIRF में इंडिया के टॉप बेस्ट 100 कॉलेजेस के बैंड में आते हैं, क्योंकि इंडिया में टोटली तो 45,000 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, लेकिन जितने भी उसमें नैक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को अपना डाटा देते हैं, उसके बेस्ट कॉलेजेस में, उसमें भी नैक में भी और NIRF में भी, दोनों में इंक्लूसिविटी के डाटा की बहुत बड़ी वेटेज होती है। देखिए, हम कई फ्रंट पे काम कर रहे हैं। हम इवन फ्रॉम द पॉइंट एडमिशन देने के वक्त से कितने तरह के स्टूडेंट्स को इंक्लूड करते हैं। हमारे पास लगभग देश के हर स्टेट का एक नए कुछ बच्चे, ऐसा कोई बहुत गिने चुने कॉलेज होंगे जिसमें हर स्टेट के बच्चे एक जगह पढ़ते हो, गागर में सागर। यही इंक्लूसिविटी है। हम एडमिशन के वक्त इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी एडमिशन देते हैं। इसके साथ हम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के बच्चों को, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी बच्चों को, और हम PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप्स है ना, जो PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उनको भी वेटेज देते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो रिमोट एरिया है, जैसे अंडमान निकोबार है, जहाँ इंफॉर्मेशन नहीं जाती, जो कई बार देश के बाकी हिस्सों से कट जाते हैं, जैसे लेह लद्दाख है, जैसे कारगिल है, जैसे अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का।
उन बच्चों के लिए स्पेशल एडमिशन प्रोसेस में उनका कोटा होता है। जम्मू कश्मीर के जो सो कॉल्ड हिंदू रिफ्यूजीज हैं जो अलग अलग देश के हिस्सों में बैठे हुए हैं, उन सब के लिए भी हम यहाँ कोटा देते हैं। इसके अतिरिक्त फिजिकली चैलेंज्ड, चाहे वो लोकोमोटर हों, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हों, चाहे वो डेफ एंड डम्ब हों, चाहे वो स्लो लर्नर हो सो कॉल्ड, तो चारों तरह के फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट को उनके लिए हमारे पास अलग मैकेनिज्म भी है उनको एडजस्ट करने के लिए। इसके अलावा हमने कॉलेज के अंदर एक स्टाफ काउंसिल, एक कमेटीज बनाती है, और उस कमेटी में एक कमेटी ऑफ इंक्लूसिविटी भी है, और ये आप शायद उसी के अंदर काम कर रहे हैं। उसमें बेसिकली सभी जो फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट है, नॉन हिंदी एरिया के स्टूडेंट है, उन सब के मिलके कल्चरल इवेंट होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं, एक्सचेंज ऑफ डांस, एक्सचेंज ऑफ सॉन्ग्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, वी ब्रिंग देम टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। इसके अतिरिक्त हम सभी स्टूडेंट्स को एक स्कॉलरशिप भी देते हैं, और वो स्कॉलरशिप बेसिकली NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। हम सभी स्टूडेंट्स को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या जो दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं जो जनरल कैटेगरी में आए हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, उनको स्कॉलरशिप मिले, इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट मिले, ताकि वो सिस्टम उनको पैसे की कमी ना हो किसी भी तरह से। तो उनके लिए भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और दूसरा हर स्टेट का एक स्कॉलरशिप पोर्टल उनको उनके लिए इन्फॉर्म करते हैं कि आप यहाँ से स्कॉलरशिप लीजिए। इसके अतिरिक्त कॉलेज में हर साल लगभग ऑलमोस्ट 1400 से 1500 अप्रोक्सीमेटली इतने स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरीके से हमारे कॉलेज की फी कंसेशन कमेटी किसी न किसी रूप में अलग अलग कैटेगरी में रिक्वायरमेंट पे फी कंसेशन करती है। हमने कॉलेज में फी कंसेशन कमेटी ने उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो कोरोना के टाइम में जिसके दोनों पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी, जिनके सिंगल किसी एक पेरेंट की डेथ हुई, उन सब को आइडेंटिफाई करके हमने उनको फ्री स्कॉलरशिप दी है। इसके अलावा हम इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे लास्ट ईयर कोरियन, साउथ कोरियन स्कॉलरशिप हमारे कॉलेज के जितने भी PH कैटेगरी के स्टूडेंट थे उन सबको स्कॉलरशिप मिली एक कोरियन बैंक के थ्रू। और इसके अलावा जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, हम सभी तरह के स्टूडेंट्स की अलग अलग कैटेगरी में उनके स्पोर्ट्स इवेंट कराते हैं। फिजिकली चैलेंज्ड के अलग कैटेगरी के स्पोर्ट्स कराते हैं, और किसी स्टूडेंट में जो भी टैलेंट है उसको नर्चर करने के लिए इंस्टीट्यूट के लेवल पे हम प्रमोट करते हैं कि इन स्टूडेंट्स को आगे कैसे निकालें। तो ये इंक्लूसिविटी है कि एक बच्चा तबला बहुत बढ़िया बजाता है तो हम उनको स्पीक मैके या दूसरे संस्थाओं में प्रमोट करते हैं कि वो जाके वहाँ अपने तबले का अपना टैलेंट को एक्सप्लोर करे और आगे बढ़ाए। सो बेसिकली टैलेंट का नर्चर करने के लिए, सभी स्टूडेंट्स को इंक्लूड करने के लिए, उनके नेचुरल इंटरेस्ट और टैलेंट के हिसाब से हम वो सारे मेजर लेते हैं जो स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हो। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कह सकता, कुछ विदेशी स्टूडेंट आते हैं, उनको कुछ कई बार लैंग्वेज बैरियर हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के जो चैलेंजेस हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट कई बार समटाइम्स दे कंप्लेन दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वी डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द पर्सन सिटिंग ऑन द काउंटर ऑफ द डीलिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टूडेंट्स। सो वी गिव ट्रेनिंग to the dealing executive, we sensitize them, and they are very particular that none of the students should be excluded from availing any kind of opportunity in the institute. बहुत बढ़िया बातें हो रही है सर। ये इसी तरीके से हमारा कॉलेज काम करे तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट होगा।
बट इन सब चीज़ों को हैंडल करने में, मैनेज करने में और इन सब चीज़ों को लाइक प्रॉपरली सुपरवाइज और एग्जीक्यूट करने में फैकल्टी मेंबर्स को कोई अगर इशू आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हो इस टाइम पर, तो हाउ वुड यू एड्रेस दैट? देखिए, फैकल्टी मेंबर्स आर गवर्न्ड बाय ए सिस्टम in the colleges in University of Delhi. The Shivaji College is the constituent college of University of Delhi. It is funded by the 95% of the fund are released by the UGC and 5% funds are released by the Delhi government. So we are academically governed by the University of Delhi. We have a governing body, and governing body have three different type of people. From the academics, 5 members from the pure academics, 5 members from Delhi government, and 5 members from the University of Delhi. So they govern the system, and we have a staff council, and staff council is headed by the principal of the college, and under the staff council there are the different committees, and one of the committee like discipline committee, like academic committee, like cultural committee. Similarly, we have the committee of inclusivity. Yes. And apart from that, in this committee of inclusivity, I don't think there is any issue raised till now about the any kind of challenge faced by the committee of inclusivity. Rather, मैं आपको बताता हूँ, the committee of inclusivity last year conducted one seminar. One police officer from Arunachal Pradesh, senior IPS officer, he came as a chief guest, and he, उसको जब यहाँ आए ऑडिटोरियम में जनरल प्रोग्राम से ज्यादा क्राउड वहाँ था. यानी कि कोई स्टूडेंट, ऑल इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ इंक्लूसिविटी सेल, बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इवेंट ऑफ द कॉलेज. और ये इंक्लूसिविटी, क्योंकि उसमें इंक्लूसिविटी में सभी इंडिया के अलग अलग पार्ट के स्टूडेंट्स अपने अपने रंग रूप में होते हैं, अपनी भाषा में, अपनी ड्रेस में, अपने खाने में. सो that is one of the most I would say the charming event of the college, जिसको सब अट्रैक्ट किया जाता है. फैकल्टी को मुझे कभी भी ये नहीं लगता कि इंक्लूसिविटी लाइक फिजिकली चैलेंज टीचर, उनके लिए हम ग्राउंड फ्लोर पे ही क्लास लगाते हैं. फिजिकली चैलेंज्ड टीचर्स या फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट, हमारे कॉलेज की टाइम टेबल कमेटी ये पहले ये डिसाइड करने से पहले सोच लेती है किस क्लास में फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट, उनको उनकी क्लासेस जहाँ रैंप है, जहाँ ग्राउंड फ्लोर है, सिर्फ वहीं लगाते हैं. जहाँ लिफ्ट की अवेलेबिलिटी है लाइक जीजा बाइक ब्लॉक, तो उनकी क्लासेस वहीं होती हैं. किसी स्टूडेंट ने, किसी टीचर ने, किसी फैकल्टी ने शिवाजी कॉलेज में आज तक किसी रीजन बेस्ड या लैंग्वेज बेस्ड या कल्चर बेस्ड या रिलीजन बेस्ड कोई ऐसे चैलेंज रिपोर्ट नहीं किए हैं. वी हैव परफेक्ट एमलगमेशन, परफेक्ट एसिमिलेशन एंड प्रॉपर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होते हैं, बिना कंप्लेंट के हम काम कर रहे हैं. किसी को ऐसा कोई मौका नहीं मिलता कॉलेज में. बहुत ही अच्छी बात है सर. उसके अलावा हम सबको पता है कि आप एक ज्योग्राफर हैं, तो आपके ज्योग्राफी से अगर हम रिलेट करें इंक्लूसिविटी को, तो लाइक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे खुद के इंडिया में ही है, तो आप इंक्लूसिविटी और ज्योग्राफी को कैसे लिंक करेंगे? देखिए, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ज्योग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो सबको समझने में किसका कैसा बिहेवियर है, इसके क्या ऑक्यूपेशन है, ये कहाँ से आया है और इसका बैकग्राउंड क्या है, उससे ये पता चल जाता है. इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं. If a student is from Rajasthan, you will find he will be very conservative student about wastage. वो एक पैसा भी खराब नहीं करेगा. राजस्थान से या उत्तराखंड से कोई स्टूडेंट आया है, एक एक रुपए का अपने एक एक बुक के एक एक पेज का प्रॉपर यूज करेगा, लाइब्रेरी के टाइम का एफिशिएंटली यूज करेगा. अगर कोई स्टूडेंट
एक ऐसी एरिया से आया है जहाँ नेचर ने उनको सब कुछ चीज़ दी है, फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, फर्टाइल वाटर अवेलेबिलिटी, क्रॉप्स, लाइक ईस्टर्न उत्तर प्रदेश या बिहार, वो थोड़े से लिबरल होते हैं बिकॉज उनके बिहेवियर को नेचर ने इस तरह से शेप किया होता है, दे आर लिबरल एनफ। वो कुछ जा रहा है, छोड़ो आगे चलो, ओ कोई बात नहीं है चला जाएगा, कुछ वो अबाउट द वेस्टेज ऑफ समटाइम्स, लाइक मैं इसको अलग रूप में नहीं लेना, दिस इज ज्योग्राफिकल बिहेवियर। मैं जब किसी भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं बेसिकली एमलगमेशन में विश्वास रखता हूँ। अगर मैं आइजॉल में हूँ या मैं राजस्थान के बाड़मेर में हूँ, मुझे कतई कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं दिल्ली से बाहर हूँ। मुझे लगता है ये मेरा घर है, क्योंकि मैं समग्रता में विश्वास करता हूँ, सब अपने साथ है। और मैं राजस्थान वालों से उनके वाटर कंडीशंस पे बात करता हूँ। अगर शिलोंग में चला जाता हूँ तो उनकी फूड हैबिट और उनके सेटलमेंट पे बात करता हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत अजीब सेटलमेंट होती हैं मिजोरम में। वहाँ पहाड़ियों की चोटियों पे सेटलमेंट होती है, पूरी दुनिया में वैलीज में सेटलमेंट होती हैं, वहाँ ऊंचाई पे सेटलमेंट होती है। तो बेसिकली जब उनकी कल्चरल ट्रेड्स पे जब बात करते हैं तो सब लोग कनेक्ट करने लग जाते हैं। एक बार मैं बच्चों का टूर लेके गया हुआ था दार्जिलिंग, वहाँ से वापस आए सिलीगुड़ी में नेक्स्ट डे ट्रेन थी, तो एक रात हमने वहाँ होटल लिया। और होटल में हमें लगा कि रात को जरा चाय पीते हैं। होटल क्या, वो लॉज था, वहाँ चाय वाय कुछ नहीं। तो पता चला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन, और वहाँ रात को चाय मिलती है, क्योंकि 2 बजे 1 बजे तक तो बच्चे ही नहीं सोने देते लॉन्ग एक्सकर्जन पे। तो जब वो रात को चाय पीने के लिए हमने एक रिक्शा हायर की, क्योंकि रात को भी रिक्शा होती है। और उस रिक्शा वाले से बात करते करते वो कहाँ का है, उसने बताया मैं मधुबनी का हूँ। अच्छा, तो मैंने भी उसे कहा क्या आप जयनगर को जानते हैं? अरे हाँ वहीं तो है। फिर मैंने कहा अच्छा वहाँ कमला रिवर है, और फिर साथ में एक बलान नदी भी है। अच्छा, उसके पास में इनरवा है, एक शहर है। सो कमला, बलान, जयनगर, इनरवा, तिरहुत और मैथिली भाषा, ये सब समझते समझते उस रिक्शा पुलर को ये लगने लगा ये तो मेरे इलाके का है। और उसको कि इतनी जानकारी, ये सब जब घूमते हैं, जब सब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा मैथिली का पुट मैंने उसे मैथिली बोले छी, जाने छी, बुझे छी, उसको लगा ये तो मेरे गांव का है। और रात को 2 बजे कोई चाय पिला के गया है, तो उसने किराया नहीं लिया उसका रिक्शा का। नहीं 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 बाबूजी, आप तो हमारे एरिया के हो। हालांकि हमने उसे बाद में दिया, उसने मना कर दिया, नहीं नहीं ये चाय भी अब आपको फ्री में पिलाएगा, ये मेरा, वो उसने चाय के पैसे भी मना कर रहा था। हालांकि हमने ये एक, इससे क्या होता है, किसी भी इंसान का आइस ब्रेकर होते हैं, कम्युनिकेशन गैप को ब्रेक कर देते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं, और वो आदमी को अपनापन दे पाते हैं। और कई बार आइस ब्रेकर से सामने वाले इंसान के अंदर से इतनी भावनाएं निकलती हैं, सकारात्मक भावनाएं, बहुत ही फ्रूटफुल रहती हैं। तो कहीं भी किसी भी सिस्टम में एसिमिलेट करने के लिए, जानने के लिए, उसको उस अपनेपन में अपनापन करके समझने में कहीं भी जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होती। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि किसी भी भाग में चले जाएं और उसको उसी भाषा, वहाँ की संस्कृति में रच बस जाएं। ये मुझे ज्योग्राफी ने सिखाया है और यही हम प्रैक्टिस भी करते हैं। सर, आपको जान के अच्छा लगेगा कि हम भी जो है वहीं बिहार से ही हैं, प्लस समस्तीपुर रीजन जो है उसमें एक पूसा जो लोकेलिटी है उस तरफ से हम भी बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जैसे आपने अभी टूर का ये किस्सा सुना है, कोई एक और किस्सा जो आपको याद हो बहुत ही अच्छा सा, वो भी आप बताए थे? देखिए किस्से बहुत हैं। देखिए लॉन्ग एक्सकर्जन स्टडी टूर कहीं ले जाना ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। किसी भी पेरेंट्स को 24 घंटे, किसी भी टीचर को 24 घंटे पेरेंट्स बनना
और उन बच्चों का बनना, पेरेंट्स बनना जो मैच्योर बच्चे हैं और जो टीचर को कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी लाइक डाइवर्ट कर सकते हैं, टीचर का ध्यान डाइवर्ट करके वो कुछ बहुत अच्छा भी कर सकते हैं और बहुत खराब भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। एक बार मैं मध्य प्रदेश में निमाड़ रीजन की में एक महेश्वर डैम बनाया है। एस कुमार ने महेश्वर डैम बनाया, और एस कुमार ये टेक्सटाइल वाले, उन्होंने एक डैम बनाया और बीओटी पे बनाया था, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। उस डैम को से जो एरिया डूब गया पीछे का, उसके रिहेबिलिटेट किसको कैसे किया, वो चैलेंजेस की स्टडी करने गए थे हम स्टूडेंट्स, कि वो कहाँ गए, वो लोग जिनके गांव खेत पूरे डूब गए, वो उनको कहाँ बसाया, उनका जीवन अब कैसा है, 5 साल बाद 10 साल बाद कैसा जीवन है। जब हम उनको देखने गए तो वहाँ महेश्वर एक टूरिस्ट स्पॉट है, और महेश्वर में एक वो है बहुत बढ़िया नर्मदा का किनारा है। और शाम को स्टूडेंट्स ने कहा सर हम थोड़ी बोटिंग करना चाहते हैं, और वो बोटिंग के लिए चले गए। और वो बोट मैंने बहुत, क्योंकि वो इतने समझदार बच्चे थे, मैं उनको ना नहीं कह सका, दे आर वेरी रेस्पॉन्सिबल। और वो बोट मैनुअल थी, और मैनुअल बोट में नर्मदा में भरपूर पानी था, वो अक्टूबर का समय था, तो पोस्ट मॉनसून उसमें सफिशिएंट पानी होता है। और कुछ आगे चल के 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, और वो बच्चे नहीं आए, कहीं दिखाई ना दे। और वो जो बोट चलाने वाला है उससे कनेक्ट करें वो भी नहीं, कोई किसी का फोन नहीं मिले। तो उस समय फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं थे, उससे पहली बात है, 99 की बात है। अब उनका मोबाइल एक जगह जाके उसमें फंस गया, उनकी बोट किसी रैपिड्स होते हैं ना, रैपिड्स में जाके फंस गई। और किसी टीचर के 25 बच्चे एक बोट में चले जाएं और टीचर ना जाए, और मैंने उनको परमिशन दे दी, मैं बैठा हुआ हूँ, आप घूम के आओ, और वो बोट फंस जाए और रात को 10 बजे तक ना आए। मैंने पूरी पुलिस हायर कर ली, पुलिस बुला ली, और ये वो तैयार किया। तो किसी ने कहा कि उस किनारे से कुछ चप्पू की आवाज आ रही है। उन्होंने क्या किया, फिर वो बोट में से निकल के मैनुअली उठाई, बोट बाहर निकाली। वो रात के 11 बजे, और मेरे पैरों के तले से जमीन निकल गई। ऐसा चैलेंज मेरे सामने, मैंने कहा मैंने क्या गलती कर दी। मतलब इतने सबसे रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स को वहाँ घूमने के लिए, कि मैं देख रहा हूँ आप घूमो, और 10 बजे तक ना आए। तो वो मेरे लिए एक ऐसा दिन था जिसको मैं हर मोमेंट पे याद करता हूँ। और कई बार मेरी गलती से पता नहीं नेगेटिव विचार आने लगे, कहाँ चले गए, बोट डूब तो नहीं गई, क्या बोट कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। सो दिस वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो मेरे को हर समय, किसी भी लॉन्ग एक्सकर्जन पे, मैं लगभग 30 के करीब लॉन्ग एक्सकर्जन ले जा चुका हूँ बच्चों का, लोकल लॉन्ग, 1 डे 2 डे, वेस्टर्न घाट में, हिमालयाज में, नाथुला में, रोहतांग पास में, सी कोस्ट में, विशाखापट्टनम, भारत का सारा भ्रमण किया है लगभग। लेकिन ऐसे हर स्टेप पे फिर मुझे ये याद रहता है कि कोई इन बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई चीज़ मुझे बार बार झकझोरती है। ऐसा अगर एक किस्सा और सुनाऊं तो मैं एक किस्सा और सुना सकता हूँ। एक बार वाटर कंजर्वेशन टेक्निक पे बीकानेर हम गए, बच्चों के लिए डेजर्ट एरिया में वाटर कंजर्वेशन टेक्निक पे कैसे काम करते। तो उस वाटर कंजर्वेशन टेक्निक के लिए हम एक होटल में रुके हुए थे, और वहाँ सिटी से 10 किलोमीटर दूर था, बीकानेर सिटी से, क्योंकि जहाँ हमें खारड़ा गांव में जाना था उस गांव के करीब था, वहाँ एक होटल बना हुआ था। वो ये चूंकि मारवाड़ रीजन है, ज़्यादातर देश के मारवाड़ी देश और दुनिया और अलग अलग स्थानों पे रहते हैं, पूर्वोत्तर में रहते हैं। वो शादियां करने जब आते हैं अपने नेटिव प्लेस पे आते हैं, वो ऐसा स्थान था। उसमें एक बहुत सुंदर स्विमिंग पूल बना हुआ था बीकानेर में, और स्विमिंग पूल होटल में। और मेरे साथ जो स्टूडेंट थे उसमें कुछ स्टूडेंट्स थे
वो स्विमिंग जानते थे, वो वहाँ वो बना हुआ था रैंप, और रैंप से ऊपर से जंप करना होता था। अब मैंने कहा कि सबसे पहले मैं जंप करूंगा और मैं वेरीफाई करूंगा कि ये ठीक है यहाँ जंप करना। और वो 15 फीट ऊपर से मैंने जंप किया, ठीक था। तो मेरे पीछे एक लड़की थी और वो लड़की बहुत बढ़िया स्विमर थी, उसने तुरंत जंप किया, ओके डन। उसके पीछे दो तीन, एक एनसीसी में वो जो लड़का है आजकल इंडियन आर्मी में है, बारामूला में, मुनीश कुमार मेजर है, वो जंप किया, कईयों ने जंप किया। फिर एक लड़का फिर पीछे से आया कि लड़की भी जंप कर रही है, ये लड़का भी जंप कर रहा है, सब मेरे साथ के, मैं भी कर जाऊं। और उसको स्विमिंग नहीं आती थी और उसने उसमें स्विमिंग, उसमें जंप कर दिया और हमें समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्विमिंग आती है, ऊपर से जंप कर रहे हैं। और मैं भी वहीं स्विमिंग कर रहा था उस पूल में, मैं भी स्पेस दे दिया था, करो। जो सारे स्विमिंग जंप करते थे और साइड में स्विमिंग करने लग जाते थे। तो जो लास्ट वाला लड़का था वो कपड़े पूरे पहने हुए था, उसने कपड़े भी नहीं निकाले और आउट ऑफ क्यूरोसिटी ही जंप्ड। और फिर कुछ बुलबुले आने लगे पानी से, जैसे कुछ पानी के। देन वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम ही, मैं उस स्टूडेंट को भूल नहीं सकता, ही रियलाइज सर समथिंग लाइक समथिंग गड़बड़, मुझे कुछ लग रहा है, क्या है। देन मैं साथ में, क्योंकि मैं इतना तेजी से स्विमिंग नहीं कर पा रहा था, उसने तेजी से स्विमिंग किया, नीचे से उसको ऊपर जंप किया। तो जैसे उसने किया और उसने अपने मुंह से बहुत सारा पानी निकाला, उसने उसको ऊपर थ्रो किया। तो ऊपर टीचर थे, तब तक उस टीचर ने उसको पकड़ के बाहर खींचा। देन वी रियलाइज्ड कि समटाइम्स अनइंटेंशनल टीचर की डायरेक्शन के बावजूद स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर देते हैं। वी शुड बी वेरी प्रिकेरियस। टीचर का रोल उस टाइम, क्योंकि 24 घंटे पेरेंट्स बन के नहीं रह सकते और 24 घंटे टीचर बन के भी नहीं रह सकते। जैसी सिचुएशन होती है हमें वैसे ही उनके साथ ऑल्टर करना पड़ता है। लॉन्ग एक्सकर्जन्स आर वन ऑफ द लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। हमें भी सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। और ज्योग्राफी सीखनी है तो फील्ड विजिट के बिना सीख ही नहीं सकते। This is one of the essential component of the discipline. So this is all. इसके अलावा सर, जो इतनी सारी कहानियाँ आपने सुनाई, हमें देखकर जानकर पता चल रहा है कि आप बच्चों से कितना ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसा क्या है जो आपको न्यू जनरेशन से इंस्पायर करता है अभी सबसे ज़्यादा? देखिए, हम, मेरी जनरेशन को अगर खुशी मिलती है तो अगली जनरेशन के चेहरे पे स्माइल देख के खुशी मिलती है। इफ़ यू आर स्माइलिंग देन आई फील हैप्पी। कोई भी, मेरी जनरेशन का कोई भी इंसान खुश होगा अगली जनरेशन के फेस पे स्माइल देख के ही खुश होता है। और अगली जनरेशन डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, वर्सेटाइल है, उसमें ग्रेटिट्यूड है, उनकी पर्सनैलिटी में ह्यूमिलिटी है, उनके बिहेवियर में कंपैशन है, एम्पैथी है। तो ये पर्सनैलिटी के वे ट्रेट्स हैं जो जनरेशन पहन लेती है ना, ये कपड़े, ये इन कैरेक्टर्स के जो मैंने बताया, ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, कंपैशन, डिसिप्लिन, एम्पैथी, तो वो ये ड्रेस पहन के इंसान जहाँ भी जाएगा उसके साथ ही ट्रेवल करेगा। और जिसने इन ड्रेस को पहना हुआ है ना, वो कभी भी लाइफ में परेशान नहीं हो सकता, वो सब जगह एडजस्ट हो जाता है। तो मेरा फोकस ये रहता है कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज से लोडेड हो। किसी भी कंडीशन में उससे कोई भी, देखिए आपसे कोई बात करेगा ना, आपसे कितनी गंदी भाषा में बात करें, आप अब जब किसी से क्वेश्चन करते हो ना, कितनी गंदी भाषा में आपसे कोई क्वेश्चन करे, आंसर बढ़िया भाषा में देना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन को कोई याद नहीं रखता, सब आंसर को याद रखते हैं। उसने क्या कहा, इसने तो गाली बक दी है, छोड़ो, इसने क्या कहा, इसने भी गाली बकी क्या। तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है शुड बी लोडेड विद एटिकेट्स। दिस इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन। और जब जो स्टूडेंट्स में मुझे ये दिखता है ना थोड़ा सा भी, मुझे बहुत खुशी मिलती है। दिस इज द वन। सो फाइनली टू द एंड, आप सब जो भी देख रहे हैं, जितने व्यूअर्स हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि जो इंक्लूजन है
जो इंक्लूसिविटी है, जो यूनिटी है, उसके लिए उनको कौन कौन से स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए खुद तक कि सोसाइटी में इंक्लूजन प्रमोट हो और लोगों को ज़्यादा बेटर स्पेस मिल सके और कैंपस में भी? देखिए, इंक्लूसिविटी है समग्रता में है। कोई ये सोचे, ये नॉलेज बेस पे है। अगर हम ये सोचें कि मेरा विकास हो गया तो देश का विकास हो गया, ये बहुत बड़ी अधूरा ज्ञान है। अगर सभी का विकास हो रहा है तभी देश का विकास हो रहा है। इसलिए कोई एजुकेशन ये पाठ नहीं पढ़ाती कि सबका विकास होगा, तो वो हालात देख के स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं। बेसिकली जब अगली जनरेशन में होलिस्टिक अप्रोच हो, सबको साथ लेके चलने का, सबकी अपॉर्चुनिटी का। भारत सरकार ने तो रिजर्वेशन पॉलिसी इसलिए तो दी कि इंक्लूसिविटी, जिनको अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिल पाई थी। अब भारत सरकार की योजनाएं देखो ना, आज़ादी के तुरंत बाद महालानोबिस के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 वर्षीय योजनाएं बनाई। उसमें इतनी सारी स्कीम दी, वो कारपेट स्कीम थी सबके लिए कि भाई सबका विकास हो। लेकिन फिर आया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कि भाई सबका ये कारपेट वाला चक्कर छोड़ो, इंटीग्रेटेड रूरल को इंटीग्रेट करो। फिर उसमें देखा कि कुछ लोग छूट गए, कुछ का विकास हो गया। फिर एक सरकार आई, उसने उसका नाम बदल के जवाहर रोजगार योजना रखा। उसने कि भाई इन लोगों को भी इंक्लूड करो जवाहर रोजगार योजना में। अब फिर वही उसको कन्वर्ट करके हमने मनरेगा रख दिया कि भाई इनको फिर अब सरकार का आ गया टारगेटेड ग्रुप अप्रोच। इनको टारगेट करो, जो एक्सक्लूजन में रह चुके हैं उनको इंक्लूड करो। उनके लिए बीपीएल बनाया, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड बनाया, उनको फ्री फूड दे रहे हैं, फ्री हाउस बना के दे रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको स्ट्रीम लाइन में लगा रहे हैं, उनके लिए सड़कें बना रहे हैं। सो बेसिकली उनको मिनिमम वेज फिक्स कर रहे हैं मजदूरी का, चाहे फॉर्मल सेक्टर हो चाहे इनफॉर्मल हो। यानी कि पर्पज ये है कि इंक्लूड करें, सबको इंक्लूड करें। तो एक पूरे देश में इंक्लूजन की एक सेंस डेवलप हुई है पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में, कि सबके साथ से ही इस देश का विकास हो पाएगा। और मैं बेसिकली एक छात्रों में 2-3 जो मैंने क्वालिटी बताई, उसके अलावा एक क्वालिटी मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ, जो आपने क्वेश्चन किया नई जनरेशन में, कि नई जनरेशन को अपने बिहेवियर में एप्रिसिएशन ज़रूर सीखना चाहिए। जो भी अच्छी चीज़ हो, क्योंकि कोई लर्नर होगा ना, उसको जो भी नई चीज़ पता चलेगी वो उसकी एप्रिसिएशन करेगा। अगर किसी ने, क्योंकि हमें कल्चर ने एप्रिसिएशन ट्रेनिंग में नहीं दिया है, बाय डिफॉल्ट हम सीखते हैं हालात से। ट्रेनिंग में हमें कहा जाता है ये बड़े हैं इनको नमस्ते करो, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कोई अच्छी चीज़ है उसको प्रेज करो। कोई भी अच्छा कार्य हो, कहीं भी अच्छा कार्य हो जो आपको इंस्पायर करे, हमें उसको प्रेज जरूर करना चाहिए। और इस प्रेज को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि वी शुड एप्रिसिएट द थिंग्स। एप्रिसिएट, अच्छी चीज़ों को हमें एप्रिसिएट करना चाहिए। और एप्रिसिएशन जब हम करना सीख जाएगी ये जनरेशन, तो इसका ध्यान और दिमाग नेगेटिविटी से दूर हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा किसी चीज में, क्योंकि वो एप्रिसिएशन इज लुकिंग टू पॉजिटिविटी ओनली, कि आप में ये कितनी अच्छा गुण है, आपने कितना अच्छा किया, आप कितनी अच्छी ड्रेस पहने हुए हैं, आपने कितना अच्छा चंदन लगाया, देखिए फ्रेग्रेंस आ रही है, कहाँ से लेके आए हैं। मैं तो कई बार पूछ लेता हूँ किसी का हेयर स्टाइल, अपने बार्बर का एड्रेस देना, कितना बढ़िया हेयर स्टाइल है उसने। कई बार मैं मजाक में, कई बार टीचर होते हैं, मैं तो उनको कई बार कोई सेविंग नहीं करता, तो अगले दिन मैं बोल देता हूँ, ओ 10 रुपया बचा लिया आपने आज। क्या मतलब सर? कि आज 10 रुपए का ब्लेड बच गया, घर बनाओगे 10 रुपए में। ये लाइट टोन में, हालांकि आलोचना नहीं है, बट कनेक्ट कर पाता हूँ। बट मैं ऑलवेज ये सोचता हूँ कि आपने मुझे एक, उस टीचर को मैं कहता हूँ आपने मुझे एक एप्रिसिएशन का मौका नहीं दिया। अगर आप सेविंग कर लेते तो आप वो 10 मिनट का जो समय है वो निकाल लेते, तो मैं आपको एप्रिसिएट करता। आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। प्लीज, वो टीचर अगले दिन से पूरी सेविंग करके जेंटलमैन बन के आएगा। तो बेसिकली अगर हम एप्रिसिएशन अगली जनरेशन में, मैं देखता हूँ ये मिसिंग है।
अच्छी चीज को अप्रिशिएट करेंगे तो उनके माइंड में नेगेटिविटी नहीं आएगी, वो कंस्ट्रक्टिव रहेंगे। दिस इज माई मैसेज टू द जनरेशन नेक्स्ट। बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे मैसेज है सर आपके। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी नॉलेज मिली है, आपके एक्सपीरियंसेस, जर्नी सारे आपकी तरह ही ग्रेट हैं। Thank you so much for joining us today. With this, we will ending our first episode of बात inclusive है। Thank you so much sir. एक लास्ट में एक मैं शेर बोलना चाह रहा था। Yes sir. नई जनरेशन के लिए, युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। अरे वाह। क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में युद्ध का मतलब तलवार लेके नहीं, उसके चैलेंजेस, उसके स्ट्रगल्स, उसके असाइनमेंट्स, उसके जिसके जीवन में ये सब नहीं है ना, वो बड़े अभागे हैं। तो सबको अपने चैलेंजेस और उनको अकम्प्लिश जरूर करना चाहिए। और बड़े अभागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे या प्रण को तोड़ा होगा। तो दोनों शब्द ऐसे हैं कि उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को अपने चैलेंजेस को जरूर अकम्प्लिश करना चाहिए। Thank you so much sir. Your words are inspiring us and we hope that those all who are जो भी आपको देख रहे हैं वो सभी आपके इन शब्दों से इंस्पायर होंगे। And with this we will like to conclude our today's session. See you in our next episode. Please continue. Thank you Thank very you, much. Thank you.